Today's subject, meeting the challenges of change. We all understand that the present time is changing very fast, and together with the time, the changes that are occurring is also very fast. And to meet those challenges of the present time, we need to be very powerful from within. If we start taking the supports of weaknesses, then we are not able to respond to the present time effectively. Every moment, now and then, time is demanding a response from human beings. And whenever time demands a response, our emotions are attached. Time demands a response. You can say time, situations, circumstances, problems. Whenever anything comes up, it demands a response from us. And during this time, the emotions, they are attached. So if the emotions become negative, they influence the behavior of the individual. And this behavior feeds into that time or that situation, that problem. So supposing a situation is there, a challenge is there in front of us, it is demanding a response, and I get irritated, for example. That irritation comes out through the behavior. So the behavior is negative, and that behavior feeds into that challenge. So will the challenge be easy for us to accept, or will it become more challenging? More complicated, more complex. Again it demands a response. Again there is more anger, maybe comes out through the behavior that feeds into that challenge, making it worst. So we are not able to handle ourselves, we are not able to handle that situation also. Sometimes when we are traveling in train, many of us have seen this scene. In the reservation coach, some people get into it. Please let us sit. Those who are regular travelers of the train, who are going for jobs to the nearby cities, please allow us to sit. 3 or 4 can sit, and then people start quarreling. ये रिजर्वेशन कोच है, रिजर्वेशन है तो क्या हुआ? एंड उसके आधार पर अगर आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो बोलना चलना शुरू हो जाता है, और वो बोल चाल फिर धीरे धीरे 2 गाली, उसने 4 गाली, 8 गाली, 16 गाली, मारा मारी पर बातें आ जाती है. Sometimes the matter reaches to such a height that it is difficult to settle. So every now and then, every moment is demanding a response from us. Sometimes there are sayings also, small molehills turning into mountains. And this molehills turning into mountains is because we do not know how to respond effectively in the present time, in these changing times.
So this changing times is demanding a response, and I have to know the technique to respond in this time more effectively. Whenever we want to respond, which are the 3 ingredients that we need? There are 3 ingredients. The first ingredient is knowledge and understanding. What to change and why to change. कभी भी हम किसी को भी परिवर्तन के लिए कहते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है क्यों? क्यों करना है? The person wants an understanding. Why do I have to change? What do I have to change? एक बार हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी, उसके 2 बच्चे थे, एक 3 साल का था, एक 5 साल का था। दोनों बच्चे एक खिलौने से खेल रहे थे। खेलते खेलते लड़ाई हो गई दोनों की। वो कहे मुझे चाहिए, वो कहे मुझे चाहिए। अब माँ ने, जब दोनों बच्चे लड़ रहे थे तो माँ ने क्या किया, बड़े बच्चे को कहा बेटा तुम उसको दे दो, तुम चेंज हो जाओ। तो बड़े बच्चे ने सवाल पूछा क्यों? Why did you tell me this and not him? यही चीज उसको बोल सकते थे, मुझे क्यों कहा? तो माँ ने क्या कहा होगा, वो छोटा है तुम बड़ा है, नॉर्मली यही कहते हैं। वो बड़ा बच्चा 5 साल का 1 मिनट के लिए साइलेंट हो गया। उसके बाद उसकी माँ को कहता है कि मैं हमेशा ही इससे बड़ा रहूंगा, ये तो कभी मेरे से बड़ा होने वाला ही नहीं है, क्या हमेशा मुझे ही चेंज होना पड़ेगा? He wanted an understanding. क्या कहेंगे? आजकल यही सब जगह होते हैं, एक को कहो चेंज हो जाओ, नहीं, मुझे ही क्यों? छोटे बच्चे की सिर्फ बात नहीं है, बड़े भी यही कहते हैं, मुझे ही क्यों, ये क्यों नहीं कर सकता है? क्या कहना चाहिए उस माँ को? अगर हाँ कहे कि हाँ हमेशा ही तुझे चेंज होना पड़ेगा, तो ये कोई जस्टिस नहीं है। क्या कहना चाहिए माँ को? क्या कहना चाहिए? बच्चे ने बड़ा इंटेलिजेंट सवाल पूछा, मैं हमेशा ही इनसे बड़ा रहूंगा, ये तो कभी मुझसे बड़ा होने वाला ही नहीं है। लेकिन उस मोमेंट पर क्या करना चाहिए उसको? उसकी खुशी में ही तुम्हारी भी खुशी जब आ जाएगी तो फिर नहीं होगा। लेकिन उस मोमेंट दे वांट, बोथ ऑफ देम वांट द सेम वन। उस समय वो कहता है कि इसको कहो ना नेक्स्ट टाइम, उसको भी कहेंगे। उस समय कैसे सेटलमेंट किया जाए? हाँ, दोनों को नहीं मिलेगा, फिर वो तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, रोना चिल्लाना चलेगा। पहले उसको चाहिए, वो कहता है पहले 10 मिनट्स मुझे चाहिए। उस माँ ने देखा हमारे और कहा देखो ये बच्चे क्या सवाल कर रहे हैं आजकल। मैंने उस बड़े को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, तुमको वो चाहिए? बोला हाँ चाहिए। मैंने कहा अभी तुम उसको दे दो और देखो वो तुझे चाहिए ना, हम ये दूसरा खेल खेलते हैं।
दूसरा खिलौना तो था नहीं, तो उस बच्चे को वो नहीं ये हैंड की गेम होती है, तो गेम मैंने कहा चलो तुम मुझे मारना और ये गेम खेलते हैं, देखना वो 10 मिनट के बाद तुमको वो दे देगा, वो यहाँ खेलने आ जाएगा। तो उसने सोचा हाँ ठीक है प्रयोग करूं, लेट मी एक्सपेरिमेंट। समझदार तो था बच्चा, उसने कहा ठीक है दे दिया वो खिलौना और मेरे साथ खेलने लगा। खेलते खेलते ऐसा हुआ बार बार देख रहा था उसके तरफ, आता है कि नहीं आता है कि नहीं, है ना। वो छोटा भी देख रहा था। आखिर उसको इतना जैसे अट्रैक्शन हुआ इस गेम पर, 10 मिनट के बाद उसने आकर कहा लो भाई ये तुम खेलो, मैं इधर खेलता हूँ, मेरे को भी ऐसा ऐसा करो, है ना। उसके बाद कुछ समय के बाद मुझे वो बहन मिली, मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कहा उस दिन के बाद झगड़ा ही खत्म हो गया। कहा वो बच्चे ने ये समझ लिया कि कुछ भी चीज चाहिए तो पहले दे दो, ये यूनिवर्सल लॉ है, व्हाट यू वांट टू गेट यू हैव टू गिव दैट। जब दे देंगे तो मिलेगा। तो कहा उस दिन से ये एक सिंपल लॉ इतना अच्छी तरह उसने समझ लिया, तो झगड़ा ही खत्म हो गया वो बच्चों का, क्योंकि कभी भी उसको कुछ चाहिए तो वो उस समय ना नहीं करता है, दे देता है। और ऐसी चीज से वो खेलने लगता है जिससे कि वो छोटे को लालच हो, वो उसी समय वो छोड़ करके वहां आ जाएगा, ये मेरे को दे दो। उसको वो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। हमें भी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना चाहिए, जब कोई चीज चाहिए तो दे दो, वॉट एवर वी वॉन्ट। आपको सम्मान चाहिए तो क्या करो, सम्मान दो, जो देंगे सो मिलेगा, है ना। जो देंगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे। तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एक छोटे बच्चे को भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि क्यों मुझे चेंज होना पड़ेगा, तब तक चेंज नहीं हो सकता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है डिजायर। अगर नॉलेज क्लियर है क्या चेंज करना है, तो डिजायर अपने आप आ जाएंगी चेंज होने की। और उसके साथ तीसरा इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है स्किल्स, हाउ टू चेंज। तरीका भी आ जाएगा। उस बच्चे को स्पष्ट हो गया तो उसकी चेंज होने की डिजायर हुई, और फिर तरीका भी आया कैसे करना है। तो ये तीनों चीज जहां है वहां चेंज पॉसिबल है, नहीं तो चेंज पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए एक फॉर्मूला बनाई है चेंज के लिए कि C इज पॉसिबल ओनली व्हेन A plus B plus D is greater than X। अर्थात चेंज तभी हो सकता है जब A मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ द नीड टू चेंज, आवश्यकता को स्वीकार करना। वर्तमान समय आवश्यकता है परिवर्तन की। आवश्यकता को जब स्वीकार करते हैं उसके बाद B अर्थात बिलीव इन द एबिलिटी टू सक्सीड, आत्मविश्वास भी चाहिए। और साथ ही साथ D अर्थात डिजायरेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर स्टेट। परिवर्तन के बाद वो फ्यूचर स्टेट कैसा होगा, डिजायरेबल होना चाहिए। When this 3 is greater than X, X here is cost of changing। जो समय, शक्ति, रिसोर्सेज, मनी लगाया, उनसे ज्यादा ये 3 चीज होनी चाहिए, तब वो सारे रिसोर्सेज, समय, शक्ति सफल हुए, नहीं तो वो वेस्ट हो जाता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज,
वेस्ट ऑफ एनर्जी सब वेस्ट हो गया। तो इसलिए समय अनुसार जब परिवर्तन चाहिए तो उस परिवर्तन को किस तरह ले आना है, ये तीन चीज और साथ ही साथ जो पर्सनल रिसोर्सेज है वो पर्सनल रिसोर्सेज भी इतना मैक्सिमम होना चाहिए, तब वो कॉस्ट ऑफ चेंजिंग सफल हो जाती है। इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटी सी गेम खेलेंगे। हाँ, दोपहर का समय है, सुबह से आप सुनते आए हैं, कुछ एक्सरसाइज आदि तो आपने कर लिया। अब एक छोटी सी गेम खेलेंगे, ठीक है? खेलें? इस गेम को जो जानते हैं उसको तो आवश्यकता नहीं है खेलने की, लेकिन जिसने कभी नहीं खेला है तो उसको आनंद भी आएगा। तो खेलने के लिए खड़े होना पड़ेगा। अब पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे आपको, दो दो की जोड़ी में हो जाएंगे। आप यहाँ जाओ। हाँ, ओके, आप वहाँ मैडम के पास चलिए। आइए आइए, आगे आ जाइए। अच्छा, इस गेम में सबको पार्टनर्स मिल गए? अच्छा, आमने सामने हो जाएंगे, आमने सामने। अच्छा, अब आपको अपने पार्टनर को बहुत ध्यान से 30 सेकंड के लिए, मैं टाइम आपको बताएंगी 30 सेकंड कब हो जाएंगी, 30 सेकंड के लिए ऊपर से नीचे तक बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। स्टार्ट। स्टॉप। अब अपने पार्टनर को पीठ कर दीजिए, घूम जाइए, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। अब अपने ऊपर 3 चेंजेस ले आइए। ब्रिंग अबाउट 3 changes on your physical appearance that your partner will have to identify, and be creative in bringing about those changes. Bring about 3 changes on your physical appearance that your partner will have to identify, and be creative in bringing about the changes. 3 changes करिए। 3 चेंजेस, 3 चेंजेस ले आइए अपने ऊपर। हाँ, फिजिकल चेंजेस। Bring about 3 changes on your physical appearance. कर लिया? 3 चेंजेस कर लिए? नहीं नहीं, फिजिकल अपीयरेंस पर कोई भी चेंज ले आए। ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. Okay, now turn around, identify the changes. क्या चेंज किए? हाँ, ढूंढो क्या चेंज किया। यू कैन शो देम क्या चेंजेस किए उन्होंने। नहीं नहीं, you don't, he has to tell you what changes you have brought, and you have to tell him what changes he has brought. Huh? Identified? Third one she did not
He has no changes. Huh? He has told my changes. Huh? He said, yeah, I was angry. No, you tell him, he will tell you. He was angry, he was smiling. Three changes. Three changes, yeah, three One changes. was smiling, one was angry, one was angry. You have no change. And what about the changes in him? There was no change. No change. No change. No change. You can tell him what changes you have brought about. So laugh, and so angry. Okay. Now you have found out the three changes. Huh? Keep those changes as they are. Don't change them back. Don't change them back. Okay. Now again back to back with your partner. Back to back. Keep those three changes as they are. हाँ, उसको हाथ नहीं लगाना, जैसे थे वैसे रख दो. अब अपने ऊपर 4 और चेंजेस ले आइए. 4 more changes. हाँ? नहीं, 4 more changes. Bring about 4 more changes and be creative. Four more changes. वो पहले वाले 3 को हाथ नहीं लगाना. 4 more changes. In the process, you may forget what you have done. कर लिए? अच्छा, now turn around, find out the 4 more changes. You are able to identify? Huh? Found out all the changes? Huh? हो गया? अच्छा, now keep those changes as they are. Huh? You have 7 changes on you. Keep them as they are and turn around again. Bring about 6 more changes. No? नहीं होगा? नहीं? Not possible? Okay, sit down. इस छोटी सी गेम से what did you learn? It was a small game. Changes are possible, but there is a limit to change. Okay, to a certain extent only. What else? And the change that is observed cannot be appreciated by the person who doesn't keep it low. The change cannot be appreciated at times. Okay. Change can be guided. Change can be guided. Okay. What else? Observation power. Okay. Huh? Observation differs. If not only observation, if one does not see or observe the changes that has occurred, there is no point in even if the change has occurred. Okay. और भी? Along with the changes, some behavior changes also take place. Along with the changes, some behavior changes also take place.
We have to notice those behavior changes also. Okay. Huh? Okay. Every time you are bringing about a change, there is creativity in you. Okay. New ideas come up. Right? Happiness is there. Thinking. The mind is stimulated. Your mind is stimulated. What else? Understanding other person. Huh? Understanding the other person. Okay, let me ask you some questions. When I asked you to observe your partner for 30 seconds, how did you feel? Slightly uncomfortable. Comfortable? No. You didn't feel comfortable. Okay. And how were the 30 seconds? Too long or very short? Too long. Huh? It is because Maybe if you know the person, it may not be too long. if you know the person, can I have a piece of paper? Can I have that paper? That paper. No, with the unknown person, Paper देना ना एक सिर्फ. even the content will be quite long. ये नहीं. Why did you feel those 30 seconds too long? Because you are not given proper information about the game. When we saw, we need the understanding first of all, for any change process, what to change, why to change. But nobody asked me. When I said just stand up, start looking at your partner for 30 seconds, nobody asked me what do we have to observe. What is the whole game about? Can you explain the game first? Without knowing about the game, you started off. Follow father. So for any change process, first of all, we have to have complete information. Without information, no change is possible. So that is why you were feeling uncomfortable, because you were not knowing what to observe. Somebody is just observing you, looking at you. After that also, when I asked you to bring about 3 changes, you are not clear about what type of changes you have to bring about, and you started off. Some people were bringing about behavioral changes, some were trying to bring changes in their moods, some were trying to bring about physical changes, because the awareness was not there. What type of changes? No information. So first of all, have clear information about the whole process. Achha, when I asked you to bring about 3 changes, how many of you started by removing things, taking off things? No? चश्मे उतार दिए, कुछ ना कुछ उतारना चालू कर दिया. Yes? Majority, all of you. Now this is another psychology. Whenever we ask anyone to change, they think of what to give up, क्या छोड़ना है ना? And whichever things we feel we can let go, we start taking of those things. ठीक है? प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई चेंज करने के लिए कहते हैं, ठीक है, आज से ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे. 3 चेंजेस हमने कर दिया. Give up? No. Removing, giving up is not a change. So therefore, clarify people what they are going to gain through the process. और इसीलिए 3 चेंजेस तो इजी था. फर्स्ट राउंड इजी था. सेकंड राउंड में भी the same theory was adopted, taking out or removing 4 more things. और इसलिए थर्ड राउंड में you are not successful because the same style is not going to work any longer. You won't have enough resources. Isn't it? यहाँ तक हमने देखा कि जब हमने कहा bring about creative changes, तो किसी के बाल ठीक थे तो खराब कर दिए, खराब कर दिए उसको. खराब करने लिए नहीं कहा. I did not ask you to spoil.
अपना हुलिया ठीक रखना था, उसको बिगाड़ना नहीं था। लेकिन दिस इज अनदर साइकोलॉजी कि जब कोई चेंज करने लिए कहता है तो सोचते हैं बिगाड़ के रख दो, जिसको ठीक करना होगा करेगा ना, जिसको भी ठीक करना होगा। ये चेंज नहीं कहा। और इसलिए मेक श्योर पीपल रियलाइज दैट द ओल्ड वे इजंट गोइंग टू वर्क एनी लॉन्गर। 2 बार कर सकेंगे, तीसरी बार आप नहीं कर सकेंगे। 2 बार चेंजेस ला सकेंगे चीज़ें उतार करके, लेकिन तीसरी बार तीसरे राउंड में नहीं हो पाएगा। यू आर शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज। और इसलिए द 4th लेसन इज हेल्प पीपल टू रीएडजस्ट देयर वे ऑफ थिंकिंग। सोचने का उनका ढंग किस प्रकार का होना चाहिए, ये फिर से गाइड करना है। ये नहीं कि हम डिमांड करते जाए 3 चेंजेस ले आओ, 4 चेंजेस ले आओ, 6 चेंजेस ले आओ, विदाउट रियलाइजिंग कि इनका जो थिंकिंग पैटर्न्स है वो कुछ सही नहीं है। और इसलिए जब रेजिस्टेंस आता भी है तो immediately be sensitive to the resistance, to the feelings of the people. Respect those who resist change. There are probably good reasons also. अच्छा, हमने आपको 7 चेंजेस करने लिए कहा था, राइट? Everyone had 7 changes, राइट? 7 चेंजेस किया था आपने? नहीं किया था, 6 चेंजेस किया होगा किसी ने 5 चेंजेस किया, 7 चेंजेस किया था। ओके, अभी 7 में से आपके ऊपर कितने हैं? क्यों? यस, आई आस्क्ड यू एवरी टाइम, प्लीज मेंटेन दोज चेंजेस। उसको वापस हाथ नहीं लगाना। खेल कहाँ खत्म हुआ? अभी तो चल रहा है, लेसन्स चल रहे हैं। हाँ, यस। As soon as I got the information that this corrected, हाँ, उसको वापस करने के लिए तो नहीं बताया था हमने। एवरी टाइम आई सेड प्लीज कीप दोज चेंजेस एज दे आर, उसको हाथ नहीं लगाना। हाँ, No, the fact you said that you did not ask for the more or the same. So we thought everything is wrong. Assume so many things. so this is what we do, we assume, assumption. हाँ, हाँ, तो इसलिए गेम पूरा हो गया ये मान लिया, बट एज सुन एज द प्रेशर वॉज लिफ्टेड अप, व्हाट हैपेंड? Human behavior is such that you revert back to the old behavior, old ways, old styles. सब कुछ पुराना वापस हो जाता है। तो ये सही चेंज तो नहीं था। Why did you change them back? Maybe you were not comfortable with those changes. You yourself were not comfortable. Just imagine, if I am not comfortable with my own changes, how can others be comfortable with my changes? प्रैक्टिकल लाइफ में हम खुद ही कंफर्टेबल नहीं है, तभी तो रिवर्ट हो गए ना। तो हाउ कैन अदर्स बी कंफर्टेबल विद द चेंजेस दैट आई हैव ब्रॉट? Permit people to set their own goals. Don't demand too much. अगर मैं ये कहती थी कि भले आप 1 या 2 चेंज जितना ला सको उतना करो, आप अपनी रीति से अगर गोल सेट करते थे तो क्या होता था? You would have made 1 or 2 changes, but they would have been the best. You would have been comfortable, वो परमानेंट रहा होगा। लेकिन 3 चेंजेस, 4 चेंजेस, 6 चेंजेस नहीं कर सके, प्रैक्टिकल नहीं हो सका। और इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, ये इतना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती है। हर एक की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है कि वो इतना चेंज कर भी कर सके।
हाँ, इतना फास्ट चेंज कर भी सके, क्रिएटिव रीति से कर सके, कंफर्टेबल खुद भी हो और उसके साथ दूसरे भी हो, ये भी हो सके, नहीं। तो इसलिए 7 में से एक भी चेंज नहीं रहा, और तभी डोंट ट्राई टू चेंज पीपल, गिव देम द इंस्पिरेशन, द इंफॉर्मेशन टू चेंज, बट let them change themselves only. तो ये 7 वैल्यूएबल लेसन्स हमने इस छोटी सी गेम से सीखा। अब ये भी नहीं होता है कि कई लोग चेंज होना नहीं चाहते हैं, है ना। कई बार कई लोग चेंज चाहते भी हैं, क्योंकि आज दुनिया के अंदर कोई भी गैदरिंग में आप चले जाओ, हर एक जो बातें करते हैं वो बातें किस प्रकार की होती है, चेंज। कोई भी गैदरिंग में जाओ, लोग क्या कहेंगे, सीनियर शुड चेंज, कोई कहते हैं जूनियर शुड चेंज, कोई कहते हैं सिस्टम शुड चेंज, कोई कहते हैं स्ट्रक्चर शुड चेंज, कोई कहते हैं एजुकेशन सिस्टम शुड चेंज, कोई कहते हैं गवर्नमेंट शुड चेंज, कोई कहते हैं पॉलिसी शुड चेंज। एवरीवन वांट्स चेंज, ये सबको चेंज होना चाहिए एक्सेप्ट माई सेल्फ। बाकी सबको चेंज होना चाहिए, बाकी सब चेंज हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमको चेंज नहीं होना है। जब हमको चेंज नहीं होना है तो दूसरे जो चेंज कर रहे हैं उसका भी हमें महसूसता नहीं होती है। आप सब ने गेम खेला, राइट, सभी एक प्रोसेस में थे, चेंज के प्रोसेस में थे। आपके पार्टनर को छोड़ करके आजू बाजू कितने लोग थे आपके पास में, किसने चीजें एक दूसरे से एक्सचेंज किया? How many of you exchange things with one another? Nobody. Why? When everyone in the same process, we could have created a team spirit. We could have created a team spirit. Exchange करते थे तो क्या हो जाता था? This game would have gone for hours. और creativity उसमें कितनी हो जाती थी? Everyone would have enjoyed. But even though when everyone was going through the same process, everyone was feeling themselves to be alone. I am the only one changing, nobody else. Because we did not see the world around us, that the whole world is changing. And therefore we were not able to take the cooperation or give the cooperation to one another. तो चेंज प्रोसेस के लिए भी एक टीम स्पिरिट क्रिएट कर लेना बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा भी होता है कि चेंज करना चाहते भी है, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी होती है जो करने का तरीका मालूम नहीं है, और ऐसे हो जाते हैं जैसे सर्कस में वो ट्रेपेजर्स नहीं होते, माइट हैव सीन द ट्रेपेजर्स, एक रॉड पकड़ के स्विंग करते आते हैं, सामने से दूसरा रॉड आता है, उसके ऊपर जंप कर लेते हैं, ये रॉड छोड़ देते हैं। Then they swing through this rod, another rod comes forward, they jump onto the other rod, leave this rod. The art is in changing the rods only, and this is how they entertain people. उसको देखकर कई बार वो जोकर भी ऊपर चढ़ता है, he also tries, but he is afraid, so he feels, let me hold this rod very tightly, and he is swinging on the same rod. People start laughing at him. He does not know how to change, he does not have the courage to change. Okay, when people laugh at him, what does he think? Now let me try, I can change. So coming on this rod, when the other rod comes, he tries to let go this rod, jump onto the other rod, but he misses that rod as well, and he falls. The same thing happens with people also. We are so comfortable with the old styles, old ways, old means, we do not want to let them go. We are very happy swinging onto those, taking the support of those old ways, means, techniques, etc.
पीपल ऑल्सो लाफ। चेंज नहीं कर सकता है ये व्यक्ति, ही कैनॉट अडॉप्ट द न्यूनेस विद इन हिम। और कई क्या करते हैं, ये भी छोड़ देते हैं और वो नया भी पकड़ नहीं सकते हैं, उसको भी नहीं पकड़ सकते हैं, दे कोलैप्स। अब सर्कस में तो नेट होती है तो बच जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नेट नहीं होती है तो क्या होता है, कोलैप्स हो जाते हैं। तो आज के युग में सबसे बड़ी चैलेंज ही है चेंज करने की, और वो चेंज करने का तरीका भी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कई प्रकार के लोग आज के युग में देखने को मिलते हैं। 5 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्रकार के लोग हैं हु रेजिस्ट चेंज। दूसरे प्रकार के लोग हैं हु फ्ली, ट्राई टू गो अवे फ्रॉम दैट चेंज। तीसरे प्रकार के लोग हैं हु इग्नोर चेंज, करना ही नहीं है। चौथे प्रकार के लोग हैं डिनाई चेंज। And the 5th type of people are those who embrace change. और इसलिए जो रेजिस्ट करते हैं उसके रेजिस्टेंस के कारण भी क्या है? There are various reasons why people resist change. Fear of the unknown, loss of competence, कहीं हमारी competence इसमें चली गई, lack of understanding of the consequences, इस चेंज के बाद क्या होगा वो कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर नहीं है। लैक ऑफ ट्रस्ट इन द लीडर्स हु इज आस्किंग देम टू चेंज, और नॉट अ रियल सिंड्रोम, कुछ वास्तविकता नहीं लगती है। थ्रेट टू द वैल्यूज, मे बी आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज बाय वैल्यू सिस्टम, इसलिए भी चेंज होना नहीं चाहते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी नहीं है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट देयर, मे रियली बी वर्स ऑफ, जो है उससे भी स्थिति बुरी हो जाएंगी, ये सोचते हैं। अनप्लेजेंट पास्ट एक्सपीरियंस, चेंज के साथ का जो एक्सपीरियंस है बहुत अनप्लेजेंट है, इसलिए भी चेंज होना नहीं चाहते। तो ये अनेक कारण है वाई पीपल रेजिस्ट चेंज। और इसलिए उनके रिएक्शंस भी अगर देखे जाए, जो 5 प्रकार के लोग बताए, और उसके रिजल्ट भी क्या है। द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल हु इग्नोर द नेसेसिटी फॉर चेंज, व्हाट हैपन्स टू देम? दे आर रन ओवर बाय द चेंजेस। दूसरे प्रकार के लोग हु एक्सेप्ट द नेसेसिटी बट हैव अ फियर ऑफ लिविंग द स्टेटस क्यू, कहीं हमारा स्टेटस चला गया तो दे लिव यूजलेसली इन द पास्ट। तीसरे प्रकार के लोग हु एक्सेप्ट द नेसेसिटी एंड प्रिटेंड टू चेंज, व्हाट हैपन्स टू देम? दे डिसीव द सेल्फ एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स एज वेल। द फोर्थ टाइप ऑफ पीपल हु एक्सेप्ट but do not know how to change, the skills are not there, they commit many mistakes in the name of change. And the 5th type of people who accept, analyze them well, plan and carry out a step by step plan, they are the ones who survive the change and open the way for others also to follow. तो इसलिए बहुत अच्छा नीचे ये लिखा है, होल्डिंग ऑन टू द ओल्ड while trying to establish the new means twice the work. एक पुराना जो स्टाइल है उसको छोड़ना भी नहीं है और नया भी लेना है। अब दोनों एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, और दोनों पकड़ने जाएंगे तो भी बीच से हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए ये रिएक्शंस है चेंज के लिए। अब वो चेंज जो करना है, कहाँ से हमें वो चेंज को आरंभ करना है?
दो सर्कल्स है, एक है सर्कल ऑफ कंसर्न और दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न जो हमारी लाइफ से कंसर्न्ड भी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपटीशन, इकोनॉमिक रिसेशन एक्सेट्रा। जब इसके बारे में ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं, वी स्टार्ट कंप्लेनिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी है, उसको चेंज होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो क्या होता है, वी डेवलप अ रिएक्टिव फोकस। एंड रिएक्टिव फोकस मीन्स where negative energy waves are generated. ये negative energy waves जब निकलते हैं तो they start pressurizing our circle of influence. जहाँ हमारा influence है, our values, attitudes, vision, beliefs, assumptions, thinking process, consciousness, उन सबको pressure में ले आता है। And the circle of influence starts getting contracted, छोटा हो जाता है। करना क्या है? To be effective and bring about a proper change, I cannot change the government policies, I cannot change the competitive world, I cannot change the economic conditions, but what I can do is, I have something which is within my own influence, let me expand that. I have my own visions, I have my value system, my thinking process, my attitudes, I can bring about a change there. उसको expand करो तो ये gap reduce हो जाएगा और यही proactive focus बन जाएगा, where positive energy waves are generated and we can be successful through the change process. We can be effective in that change. So proactive focus is on things you have direct control over, which is within your influence. Reactive focus is to blame or be dependent upon or be subject to the external circumstances and situations. लेकिन जो internal circle of influence है, उसको कैसे expand करना चाहिए? क्योंकि आज वो भी negative होता जा रहा है, day by day that is also becoming negative. तो उसको कैसे हम expand करें? और इसलिए जो change लाने की बात है वो एक physical level की बात नहीं है, लेकिन वो change process has to be at a very subtle level. एक लेवल है बिहेवियर लेवल पर चेंज ले आना, है ना, ब्रिंगिंग अ चेंज इन आवर एक्शंस और एक्टिविटीज, ये एक चेंज ले आना है। इंस्टेंट चेंज है वहाँ पर, परंतु अ शॉर्ट लिव्ड चेंज, इट्स नॉट परमानेंट। दूसरा लेवल जो चेंज का है वो है ब्रिंगिंग अ चेंज इन आवर फीलिंग्स, इमोशंस। ये भी एक लेवल है चेंज लाने का, सटल है, बिहेवियर से सटल है। तीसरा एक लेवल है इंटेलेक्चुअल लेवल पर चेंज ले आना, ब्रिंगिंग अ चेंज इन आवर अंडरस्टैंडिंग, ये भी एक सटल लेवल है। व्हेन वी अंडरस्टैंड वी ब्रिंग अबाउट चेंज, लेकिन ये भी शॉर्ट लिव्ड है कई बार। जो चेंज एक्सपेक्टेड है या चेंज आरंभ करने की बात है वो है कॉन्शियसनेस लेवल से, एंड दैट इज ब्रिंगिंग अ चेंज इन आवर थॉट्स। जब यहाँ से चेंज आरंभ करते हैं देन वी आर एबल टू मेक अ डिफरेंस एट ऑल द वेरियस लेवल्स। लेकिन जब यहाँ से चेंज नहीं है तो ये चेंज भी सुपरफिशियल चेंज हो जाता है, डीप चेंज नहीं है और शॉर्ट लिव्ड हो जाता है, सुपरफिशियल हो जाता है। वी आर नॉट कंटेंटेड विद दैट चेंज,
others is also not contented with the change. How to bring about the change at the subtle level, consciousness level, bringing about a change in our thinking process. इसको अगर हम देखें, consciousness means the state of mind, and state of mind is created on basis of the quality of thoughts I have. जो क्वालिटी के थॉट्स हमारे हैं वैसी हमारी कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड बनती है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है वो थॉट्स को स्टिम्युलेशन कहाँ से मिलता है? And that information is stored where? Huh? Where is it stored? Huh? In the subconsciousness or the memory. So information comes from outside, is stored in the memory, and from that memory those quality of thoughts are generated. As is the quality of thoughts, so is the consciousness, the state of mind. As is the consciousness, so is the attitude. And as is the attitude, so is the perception. देखने का दृष्टिकोण भी हमारा वैसे ही हो जाता है. And as is the perception, so is the behavior or actions. And as is the behavior, so is the personality developed. वो पर्सनैलिटी फिर से उस मेमोरी को रीइंफोर्स करती है और इस प्रकार एक साइकिल क्रिएट हो जाता है. इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड. एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन कैन चेंज द एंटायर मैकेनिज्म. हम अपने ऑफिस में बैठकर बहुत पीसफुली विथ अ कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड trying to work on a project, and there is a knock. Somebody comes in, an old friend of ours. Aate he takes his seat. Hello, how are you? How are things going on? This, that, etc. After some time he asked me a question. Do you know Mr. X? So I say yes, a very nice man, kind, generous hearted, cooperative, loving, etc. All the good things I know about Mr. X. So this friend of mine says, I also thought him to be such. But, now that but, I want information. क्या हुआ? Anything happened? So my friend shares a story of how he thought Mr. X to be so nice, kind, generous hearted, loving, cooperative. So he took his help, and after taking his help, he created such problems, such chaos. There was so much of stress that was built up. He could never imagine he had been doing such things, and today he has created such a state for him which he cannot solve. After sharing the whole story, he leaves. Now what has been recorded in my memory about Mr. X? Do you think I can still concentrate on the same project with equal concentration that I was having after receiving this information? No. So my thought process starts. Can Mr. X really be like this? And then from my memory, I start digging out all those times when somebody tried to share something about Mr. X with me, trying to relate the present information with the past information. And in that process, 45 minutes pass by. After 45 minutes, another knock, Mr. X comes in.
how would I perceive Mr. X? What is my attitude? What is my consciousness? With the fresh thinking process that I have been having about him for 45 minutes, with the fresh layer of information that is registered in my memory. कुछ बातें इधर उधर की होती है, हेलो हाउ आर यू, थिंग्स, फैमिली, ये सब. उसके बाद he asked me, what is this? What are you doing? So I say, I'm trying to work out on this project, but I think it's very complicated. Mr. X says, you want my help? I'm free nowadays. I can help you. Will I accept his help? Huh? An inner conflict. उसके बाद हम क्या कहेंगे? What is my behavior? Huh? I'll manage it. Trying to ignore. Huh? और उसको कोई दूसरी बातों में लगा दिया. दूसरी बातों में लगा देने के बाद फिर उसने थोड़ी देर के बाद पूछा, लेकिन ये क्या है? Again I change the topic onto something else. 2-3 times I do that. Seeing this, Mr. X says, I think you have changed. You are not like this before. And do you accept? Yes, we have changed. Huh? When he says, you were not like this before. You never ignored me. And do we accept? Yes, we have changed. We don't accept. When everything has changed within me, everything, all mechanisms have changed. One information is enough to change the entire mechanism from positive to negative. सुबह से रात तक हमको कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है? किसी के भी विषय में कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है? और कितनी पॉजिटिव होती है, कितनी नेगेटिव होती है? मैक्सिमम कौन सी होती है? नेगेटिव. तो मैक्सिमम हमारे दिन की जो मैकेनिज्म्स चलती है वो कौन सी चलती है? नेगेटिव. तो आज पर्सनालिटी क्या हो गई है? नेगेटिव. अब इसको तोड़ना है, इस साइकिल को, तो कैसे तोड़ेंगे? कहाँ से तोड़ेंगे? पॉजिटिव थिंकिंग तो होता नहीं है. थिंकिंग इज ऑटोमेटिकली स्टिम्युलेटेड बाय द information stored in the memory. Information you don't take it totally. Don't take it. How can you not take it? Somebody has come to you to share something. How can you say, I am not going to take in this information? Huh? Maybe those information is some valuable information for you. We have to get the full information about that particular. But you don't have time. Till you get the full information, Mr. X has already come. Ask him only. And will he accept, yes, I have done this? So there is another story which is again contradicting your mind, and he has offered his help and you are cautious. We can do nothing. We should not think of negative aspect of the other. Huh. If there is an X negative quality, we put out that in. We should not take it and we should be cautious to. We should not do this, we should not, we know so many No, things. I would take it this way. He has been good to me, so if he has done for somebody, it's okay. But he's been good to me, I'll take his help. उस समय प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखो आप. आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. ऑलवेज आफ्टरवर्ड्स यू कैन एनालाइज कि ये नहीं करते थे तो अच्छा होता था, ये करते थे तो अच्छा होता था, ऐसा करते. लेकिन उस समय क्या करेंगे? हाँ. अच्छा, इसको ब्रेक करना है, ये साइकिल को, नेगेटिव साइकिल को, उसको कहाँ से ब्रेक करेंगे? फ्रॉम मेमोरी. हाउ कैन यू ब्रेक फ्रॉम द मेमोरी? Please stop. I don't want to hear this rubbish. And we can do that. And we can do that practically. Thoughts we have
listen, but you do not perception. accept everything the person says. You listen to it, but Hmm. you have your own judgment. We should have And it how from- can we have that? By what क्योंकि human nature is such, we immediately come under the influence of anybody. है ना? तुरंत किसी की भी बातों के प्रभाव में आ जाते हैं हम. We should not be recorded because the information is given. Unless we want to, we should not record. वो तो अपने आप रिकॉर्ड हो रहा है ना. वो कोई कॉन्शियस प्रोसेस थोड़ी है. हाँ, इरेज तो होता नहीं है. 10 साल का इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है स्टोर. Whatever, the cycle has to be broken at the thoughts level. परसेप्शन. with positive thoughts. एक्चुअली कहा जाता है कि मेमोरी जो है सुबह के समय में वेरी फ्रेश, इट्स लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर. उसको जो कुछ भी दो ना, इट एब्जॉर्ब्स टेक्स इन, चली जाती है अंदर में. सुबह कईयों की कैपेसिटी 1 घंटा है, कईयों की कैपेसिटी 2 घंटा है, कईयों की कैपेसिटी 3 घंटा है एब्जॉर्ब करने की. हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है. अब उस एब्जॉर्बिंग स्टेज में सपोजिंग सवेरे सवेरे हमको नेगेटिव मिला तो दैट इज एब्जॉर्ब. उसके बाद तो सैचुरेशन आ जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है. मेमोरी किसी की 1 घंटा 2 घंटा एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके बाद नहीं करेगा. जो एब्जॉर्ब किया है वो बाहर निकालना चालू करेगा. तो जो इनपुट होगा वो आउटपुट यहाँ से निकलेगा, है ना, बिहेवियर से बाहर निकलेगा. अब सुबह के समय में ही हमने अगर नेगेटिव इनपुट एब्जॉर्ब कर लिया तो हमारी सिस्टम वो हो जाएगी. तो हम ये नहीं कहते हैं कि भाई आप किसी से बात नहीं करो, सुनो नहीं, पढ़ो नहीं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, क्योंकि जो कुछ भी आप लेंगे ना, सुबह सुबह न्यूज़पेपर लेते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी? नेगेटिव, है ना. पॉजिटिव कॉलम्स आती है अंदर, लेकिन वो पढ़ते नहीं है. सुबह सुबह नेगेटिव फीडिंग हो जाता है. तो जब नेगेटिव फीडिंग हो जाता है, उस फीडिंग की स्टेज में जितना हमने नेगेटिव लिया, क्या हो जाएगा? वो हमारी सिस्टम में चला जाएगा. तो हम ये नहीं कहते कि डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, डोंट टॉक टू पीपल, लेकिन डोंट लेट दैट बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जो एब्जॉर्प्शन स्टेज है, उस समय उसको पॉजिटिव इनपुट्स दो, अच्छा दो. यहाँ आप जितने दिन से आए, 1 हफ्ते से, सुबह मॉर्निंग को क्या मिलता है आपको? मेडिटेशन क्लास, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. नो न्यूज़पेपर्स, नो टेलीविजन्स, नो कोई ऐसा फालतू बातें शेयर करने वाला, नो मोबाइल्स, नथिंग. तो सुबह की स्टेज में आपने जब पॉजिटिव दिया तो आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि सारे दिन में भी आपकी सिस्टम कैसी चल रही है ना. इतना घंटा ट्रेनिंग करना पॉसिबल हो सकता था, बाहर कहीं होता था तो पॉसिबल हो सकता था, ओवरडोज हो जाता था. लेकिन यहाँ फिर भी शाम तक भी यू हैव दैट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, क्योंकि सुबह से पॉजिटिव से शुरू हुआ है, नेगेटिव कुछ जा ही नहीं रहा है, इसलिए थकावट नहीं लग रही है इतनी. फिर भी कंपैरेटिवली जो दूसरी जगह होता था तो उसके कंपैरिजन में वो थकावट नहीं लग रही है. एयर कंडीशन हॉल्स होते तो भी थक जाते हैं, और यहाँ एयर कंडीशन हॉल्स नहीं है तो भी नहीं थक रहे हैं इतना. हाँ? फिर भी हाँ, हाँ, फिर भी फर्क तो पड़ जाता है भी, ऊपर से जाने लगता है, नींद आने लगती है, जो भी हो. तो इसलिए कहा कि क्योंकि सुबह से पॉजिटिव गया है. दूसरी कोई सिटी में होता था ना तो फ़ोन कॉल्स, ये वो, न्यूज़पेपर तो मिल गया, ये सब बातें भी तो अंदर जाती है ना, वो सिस्टम में चली जाती है, जो सब कुछ चेंज कर देता है. आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका में छोटे बच्चे 6 साल के, 8 साल के स्कूल में जाते हैं तो गन्स लेके जाते हैं,
टीचर्स को शूट कर दिया, कोई स्टूडेंट्स को शूट कर दिया। उन बच्चों को पूछा गया, व्हाई डिड यू डू दिस? एंड यू नो व्हाट आंसर दे गेव? फॉर फन। फॉर फन वाज द आंसर। वहाँ तो तुरंत एक साइकोलॉजिकल रिसर्च चालू हो जाती है, व्हाट फन डिड दिस चाइल्ड गेट। तो उन्होंने 10 साल से नीचे वाले बच्चों को बुला करके सारे खिलौने रखे और उनको कहा कि आप उठाओ इसमें से जो खिलौना चाहिए। आप मानेंगे नहीं, 90% ऑफ द चिल्ड्रन पिक्ड अप गन्स। दे वांटेड टू प्ले विद गन्स। इतने खिलौने होते हुए भी फर्दर एनालिसिस वो कैरिड आउट कि व्हाई डिड दे पिक अप द गन्स ओनली। तो कहा कि टेलीविजन पर 125 चैनल्स आती है अमेरिका में। वो 125 चैनल्स पर एक दिन में there are 18,000 to 20,000 scenes of violence shown. 18,000 to 20,000 scenes of violence, है ना। भारत में तो इतनी अज्ञानता है, माँ बाप कहीं बाहर जाते हैं ना तो बच्चों के लिए खिलौना मांगेगा तो वो गन ही लेके जाते हैं, देते हैं उसको, ये लो खेलो। इतनी अज्ञानता है। यहाँ पर ये भी अज्ञानता है, वहाँ भी है कि बाहर बच्चों को खेलने के लिए यहाँ इंडिया की तरफ भेज नहीं सकते हैं, किडनैपिंग हो जाता है, ये हो जाता है। और इसलिए वो बच्चे 24 घंटा अंदर टेलीविज़न देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम इनपुट दैट इज़ गोइंग इन? वायलेंस। आजकल बच्चों को क्या अच्छा लगता है देखने को? हॉरर शोज, वायलेंस, यही देखना चाहते हैं। तो व्हाट इज बीइंग रजिस्टर्ड इन द मेमोरी? वैसी थिंकिंग प्रोसेस है, वैसी कॉन्शियसनेस है, वैसा एटीट्यूड है, वैसा परसेप्शन है, वैसा बिहेवियर है, वही पर्सनालिटी। उनको कितना भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज करा दो, दैट इज द लास्ट स्टेज। द रूट्स आर सो डीप कि यहाँ पर आप कुछ भी कराओ, इट हैज़ नो इफेक्ट। कोर्सेज कर लेंगे लेकिन यहाँ पर कोई चेक नहीं है, नो फिल्टर इज हियर। इसलिए यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज कराने का कोई मतलब नहीं है। बिहेवियर मैनेजमेंट कोर्सेज करा दो, नो इफेक्ट। एटीट्यूडनल चेंज कोर्स करा दो, पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स करा दो, तो भी इफेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ जो रजिस्टर हो रहा है उसी के आधार पर थिंकिंग प्रोसेस चल रही है। तो इसलिए जो चेंज लाना है, हमें कॉन्शियस चेंज ले आना है। ये नहीं कि हम मेमोरी को इरेज कर सकते हैं, मेमोरी को इस तरह से इरेज नहीं कर सकते हैं अनलेस उसको पॉजिटिव नरिशमेंट मिलता है। और जब वो पॉजिटिव नरिशमेंट उसको रेगुलर मिले तब वो नेगेटिव इरेज हो सके। और इसलिए यहाँ इंस्टीट्यूशन का यही बेस है कि सुबह सुबह मेडिटेशन करो तो एक तो मेमोरी की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, और उसके बाद जो उसको नरिशमेंट दो, पॉजिटिव डिस्कोर्स, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, तो और भी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर वो चीज़ें आप देखेंगे अपने आप ये सब मैकेनिज़म्स को चेंज करती है, और अपने आप जब उसको चेंज करती है तो यू कैन सी बेटर रिजल्ट्स। वहाँ चेंज लाना सहज हो जाता है। यहाँ सुपरफिशियल लेवल पर चेंज लाना इजी नहीं है, यहाँ चेंज नहीं ला सकते हैं अनलेस द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। और उसके लिए पॉजिटिव इनपुट्स बहुत ज़रूरी है। एब्जॉर्प्शन स्टेज में दिन भर में आप भले 10 बजे के बाद न्यूज़पेपर पढ़ो, वो लेगा नहीं, सिस्टम में नहीं जाएगा, क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी क्या चला गया है, पॉजिटिव। तो चेंज लाना तब सहज हो जाता है, नहीं तो चेंज लाना इजी नहीं है। और आज की दुनिया में सरवाइव करना है तो आई हैव टू टेक दिस लोकस ऑफ कंट्रोल इन माय ओन हैंड्स। ये है लोकस ऑफ कंट्रोल जो हमें अपने हाथ में लेना है। अगर ये लोकस ऑफ कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रहा, देन people are going to manage me. I cannot manage myself. I cannot manage my systems. People are going to manage my systems for me.
सबसे बड़ी चैलेंज है आज के युग में चेंज लाने के लिए, और ये चैलेंज को हमें एक्सेप्ट भी करना है, लेकिन तरीका भी साथ साथ में ढूंढना है कैसे करना है। ठीक है ना?